Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So from the last few classes we are continuously solving some questions, basically the MCQs related to all the chapters of the your macroeconomics as well as the Indian economic development. Okay. So we have done the several questions related to the chapters. So in today's class also we are going to solve some questions. Okay. So let us see the different questions. Okay. So let's take the one question which is related to the assertion and the reason. Assertion. Assertion is post 1991. Post 1991. India has become the most favored outsourcing destination in the world. Okay, reason. India has reserves of cheap and skilled labor force. Cheap and skilled labor force. Okay. Now the option. Both assertion and reason are true and reason is correct. Explanation of assertion. Option B. Both assertion and reason are true and reason is not correct. Explanation of assertion. Option C. Assertion is true and reason is false. Option D. Assertion is false and reason is true. Okay. So ये क्वेश्चन दिया है.
क्वेश्चन में कह रहा है कि पोस्ट 1991 के बाद इंडिया क्या बन गई थी, इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन बन गई थी आउटसोर्सिंग के लिए। आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन मतलब लोग कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हम लोग से ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपको पता है क्योंकि जब प्राइवेट LPG पॉलिसीज़ के बाद इंडिया को लोग बाहर इंटरनेशनल लेवल तक, कंट्रीज़ तक लोग ज़्यादा उसको फेवर कर रहे थे बिकॉज आउटसोर्सिंग में। तो उसके पीछे रीज़न क्या दे रहा है, रीज़न दे रहा है कि इंडिया हैज़, सो दिस वन इज़ द राइट, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। और इंडिया हैज़ रिजर्व ऑफ द चीप एंड स्किल्ड लेबर फोर्स। इंडिया के पास क्या था, चीप और स्किल्ड लेबर फोर्स थे, जिसकी वजह से ही इंडिया की क्या थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यस, दिस वन इज़ ऑल्सो राइट बिकॉज इंडिया इज़ द लेबर इंटेंसिव। इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। सो दिस वन इज़ ऑल्सो राइट। तो असर्शन भी सही है आपका, रीज़न भी सही है, एंड द रीज़न इज़ ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। So option A is the right answer of this question. Okay? So this is the right answer. That is, post 1991, India has become the most favored outsourcing destination in the world because of India has the reserve of the cheap and the skilled labor force. Because India के पास क्या था, cheap और skilled labor force थे. Okay, so let's do the another question. Okay. Now the question is also based on the assertion and the reason. Assertion A. Okay. So assertion is increase in margin requirement will lead to increase in money supply in the economy. Reason is margin requirement is the difference between margin requirement is the difference between the amount of loan taken and the value of collateral security deposited.
ऑल्टरनेटिव्स क्या दे रखे हैं, ऑल्टरनेटिव्स both assertion and reason are true, both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. Option B. Both assertion and reason are true, and reason is the not correct explanation of the assertion. Both correct explanation of assertion. Option C, that it assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको क्या है, गिवन है. ओके, इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक है, पहले हम लोग को ये जानते हैं कि मीनिंग ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है. सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज सिंपली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन टेकन एज अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटी. ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि यस मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस है, अमाउंट ऑफ लोन टेकन, कितना अमाउंट ऑफ लोन लिया गया है, एंड द वैल्यू ऑफ द कोलैटरल सिक्योरिटी डिपॉजिटेड, कि कितना कोलैटरल सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट कितना लोन मिल रहा है. ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी देने पे कितना लोन ऑफर हो रहा है, उन दोनों के बीच का गैप ही क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट. सो इन द केस ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होती है वो इस रेट को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है. ठीक है, तो अगर सेंट्रल बैंक इस रेट को इंक्रीज़ कर देती है तो क्रेडिट लेना क्या हो जाता है, कॉस्टलियर हो जाता है. ठीक है, जब क्रेडिट लेना कॉस्टलियर हो जाता है सो कोई भी इंडिविजुअल क्या है वो रेडी नहीं होता है लोन को देने को, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि डिस्करेज होते हैं लोग लोन लेने को. इसमें क्या है कि इंक्रीज़ अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट करते हैं तो विल लीड टू इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई, जिससे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है. नहीं, इंक्रीज़ इन मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ाएंगे तो मार्जिन मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो क्रेडिट क्या हो जाएगा, वो कॉस्टलियर हो जाएगा, तो पीपल विल नॉट टेक दी लोन. तो इसका क्या हो गया, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D is the correct answer of this question. Let's take another question.
portion of agriculture produce sold by farmers in the market is called as option A marketable surplus, option B buffer stock, option C export surplus, option D none of the above. ओके, क्वेश्चन ये दे रखा है यहाँ पे कि द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जो पोर्शन होता है एग्रीकल्चर का विच इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हुआ है वो फार्मर क्या करते हैं, फार्मर मार्केट में सोल्ड कर देते हैं, है ना, क्योंकि पहले क्या थे वो दे ओनली प्रोड्यूस दी फूड क्रॉप्स, नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग दी कैश क्रॉप, जिससे उन्हें कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी उनकी होती रहे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट, बाय द फार्मर्स इन द मार्केट, मार्केट में वो सोल्ड कर दे रहे थे, उसको क्या कहते हैं, बफर स्टॉक। हमें पता है कि जहाँ पे स्टोरेज होता है। एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब जब हम सरप्लस एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब एक्सपोर्ट क्या होता है, मोर देन दी इम्पोर्ट, तो इसका जो भी आंसर होगा दैट विल बी दी मार्केटेबल surplus. So option A is the right answer of this question. Now next question, moving to the next question. Which one of the following is the long-term objective of India economic planning? Indian economic planning. ऑप्शन ए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या है, इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इंडियन इकोनॉमी का। तो सबसे पहला है दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्शन बी is eradication of the poverty, eradication of poverty, option C growth with social justice, option D development of industries, development of तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक प्लानिंग का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है,
ठीक है, तो हमें पता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सिंपली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट स्किल्स, ट्रेनिंग, बाय प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा. सो फिर क्या है, इराडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी. सो ये सारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हम लोग वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में इसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज. ये तो डे बाय डे हो रही है. ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, मतलब हम ग्रोथ भी करें और विद द सोशल जस्टिस, मतलब सोसाइटी को भी इसका पूरा प्रेफरेंस दिया जाए. दैट मीन्स कि सोशल जस्टिस मतलब ये जो इनइक्वालिटीज़ ना हो इनकम एंड वेल्थ का, इम्बैलेंस रीजनल ग्रोथ ना हो, मतलब कुछ ही रीजन क्या है ग्रोथ करें बाकी सारे आपकी ग्रोथ ना करें, तो ऐसा कोई भी कंट्री में हम ग्रोथ की बात नहीं करते हैं. हम जब भी बात करेंगे ग्रोथ की तो ग्रोथ कैसा होना चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ हो और साथ ही साथ उसमें सोशल जस्टिस की भी हम लोग बात करते हैं. ओके, सो नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू दी assertion and reason. assertion क्या है, पोस्ट 1991 there was a change in role of RBI from regulator to facilitator. RBI from regulator to facilitator. इसका रीज़न क्या है? रीज़न इज लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स removal of restrictions, imposed on different sector of the economy. Imposed on different sectors of the economy. ठीक है, अब इसमें पहला क्या हो जाएगा, बोथ A and R is true and correct A. Not assertion is true but R is false. Option D, assertion is false but is true. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 1991 के बाद क्या हुआ, रोल आरबीआई का चेंज हो गया है रेगुलेटर से फैसिलिटेटर. यस, ठीक है. सो लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व क्या किया, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे डिफरेंट सेक्टर्स पे उसको इम्प्रूव कर दिया. यस, सो यही इसका रीज़न हो गया कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू और आर क्या है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.